And we are left with one last theme, that is Allah and His relation with His messengers. There is a difference between Allah's messengers and Allah and His relation with messengers, by the way. So how is it different? I will discuss about it later. Generally, keep in mind Allah's relation with His messenger. कैम्ब्रिज अपनी जो स्कीम ऑफ वर्क है वहां पे ज्यादातर जो चीज लिख रहा होता है अल्लाह's messengers. Allah's messengers में ये होता है कि what did Allah's messenger do and how he is a role model for us. Allah's relation with messenger is a different thing. What did Allah do for the messengers and what was their reaction? Like Allah gave them knowledge, Allah warned them, like Hazrat Adam alayhi salam was warned to be alert from the shaitan. Did Hazrat Adam alayhi salam abided by that or not? So you will talk about that. This is Allah's relation with Hazrat Adam alayhi salam. So there is a minor difference between expectation of both questions, but we will talk about it and we will discuss it later on there. Wa alaikum salam. If you look at Allah and His relation with messengers, in our syllabus we have 5 passages about it. Passage number 11, passage 12, 13, 14 and 15. Passage 11 is Surah Baqarah. It's about Hazrat Adam alayhi salam. We need to know the verse numbers as well. Beginning ki verses hai. So this is one thing which we need to know. Second thing which we need, that's passage 12. This is the verses of Surah Al-An'am, and that has Hazrat Ibrahim discussed there. Third is Surah Al-Ma'idah, Surah Ma'idah, और उसमें है Hazrat Isa alayhi salam discuss हुए हैं. And fourth, 14th actually in sequence, 14th passage जो है वो Surah Duha है, and वो is Holy Prophet, Holy Prophet. And then Surah also 15th वो भी Holy Prophet के ऊपर exactly great. तो ये total 5 passages हैं, आपको इनके numbers भी पता होने चाहिए and which prophet is discussed. अब एक mistake जो students commonly करते हैं, when they are writing about this, मैं आपको एक model answer भी दिखाऊंगा, वो पूरी story लिखने लगते हैं. Cambridge is not expecting the story there. So instead of focusing on the word story, you need to focus on what did Allah do for the prophet and what was the reaction of the prophet. आपने two-way relation को focus करना है. It's somewhere similar to Allah's relation with the created world. वहाँ पे created world में generalize था, सारी world थी. Here Allah's relation with messenger. What did Allah do for the messenger and what is expected from the messenger? So you are going to go with this two-way connection और वो आपने वहाँ पे develop करना होता है. I have I will show you directly rather than going on in lecture and all of these things. अगर आप इस handout को follow करते हैं, it's not an answer of any specific question, but it covers answer of many questions which are asked in CI exam. First, that is introductory paragraph. Whenever you are talking about Allah's relation with the messenger, ये आपका introductory paragraph है, it could be expanded more. What type of Allah's relation is there? Is it the relation of like we can say a boss or something like that, or what type of relation is there? Allah as a teacher, Hazrat Adam as a student, for example. Is it the relation of compassion, affection, mercy, kindness? And of course, we will develop it where Allah showed mercy, where Allah showed forgiveness. Hazrat Adam का case है हमारे पास है. कभी-कभी Allah has given trials. Which prophet got trials? Like what were the trials? We will talk about it. Did Allah help the prophets when they were in difficulty? So yes, which surah talks about it? Surah Kawthar and Surah Duha. This is the way how you will develop it. तो अभी हमारे पास हजरत आदम अलैहि सलाम की डिस्कशन है और इसमें तो बहुत सारे different ways of Allah's relation with हजरत आदम highlight हुए हैं. सबसे पहले अगर देखें, Allah as the creator, Hazrat Adam as the creation. Allah as the teacher. Allah taught Hazrat Adam alayhi salam. Hazrat Adam as the student, we can say in that way as well. Then Allah gave Hazrat Adam alayhi salam free will, the choice to choose between right and wrong. And Hazrat Adam was given an option to choose. And Allah created someone to create a misguidance or like create deviation. That was shaitan. And Allah ने साथ में warn भी कर दिया कि he is the bitterest enemy we have to. अब वो reference आ जाएगा, inna shaitan lakum aduwwun mubin, verily shaitan is your biggest enemy या open enemy. अब ये आप अगर story लिखने लगेंगे कि Allah Ta'ala created Hazrat Adam alayhi salam, Allah called the angels, asked them to, that's fine, but your focus should be in this way. You can see the highlighted points here. Here Allah gave, what are the things which are blessings which Allah gave to Hazrat Adam alayhi salam and what is expected from the humans in return. Hazrat Adam से जो return था वो यहाँ आएगा. Yes. ये question कब आएगा? ये कब आया? मैं questions में दिखा रहा हूँ. ठीक है, different ways में आया. पहले मैं outline. ये question नहीं है. It's just reading material by the way. But this reading material will be helpful for all questions which are asked in CI exam. First paragraph and then you can see the second paragraph. Both paragraphs combined together are talking about whom? Hazrat Adam alayhi salam. Complete together. Adam पे अगर पूरा लिखना चाहते हैं, that is enough. It talks about, references are there. What was the instruction given to Hazrat Adam alayhi salam after he was created? Not to go to the forbidden tree.
But did Allah stop Hazrat Adam alayhi salam for something which was the need of his life? No. So Allah gave them all the blessings, asked him to stay in paradise, enjoy all the blessings except one condition. That was not to eat the forbidden fruit. अब बात बची है थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में भी जाते हैं, but we don't have to go in that depth कि आप मेन टॉपिक से आउट हो जाते हैं. ठीक, हजरत आदम की स्टोरी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है. वो देखें, यही चीजें लॉजिक और रीजन. इस्लाम में अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया था, सिंपल. मैं एग्जांपल देता हूँ. कुछ बड़े ऑर्डर्स कंपनीज के अंदर अगर आपको बॉस आपको कहता है यू हैव टू डू दैट, आप अगर लॉजिक पूछें, कई दफा लॉजिक पूछने से पहले आपके आउट हो जाते हैं. करंटली भी सिनेरियो ऐसे ही है. तो हर चीज में आपको हिकमत और सिनेरियो और रीजंस पूछने की जरूरत नहीं होती. कुछ जगह पे आपको कहा जाता है यू आर हियर टू फॉलो द रूल्स. ठीक है. तो अब अल्लाह नोज द हिकमा. रिसर्च उसकी बाद में आती रहेगी. शैतान उसने उसको मिसगाइड किया एंड ही आस्क्ड हजरत जिब्राइल, हजरत आदम अलैहि सलाम, आप ये खा लेंगे तो यू विल लिव फॉरएवर. तो ह्यूमन है, ह्यूमन को ऐसा लग रहा होता है कि तो शैतान विल, एंड दैट इज एक्चुअली लेसन फॉर अस. शैतान विल ट्राई टू कन्विंस द पीपल बाय गिविंग डिफरेंट रीजंस, और वो आपको कन्विंस करेगा वन वे. एक से नहीं आप कन्विंस होंगे, डिफरेंट लॉजिक लेके आ जाएगा. दूसरी ने तो तीसरी से ट्राई करेगा और वो आपको कहीं ना कहीं से कन्विंस करने की कोशिश करेगा. तो दिस इज व्हाट ही डिड. एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन? अब ही डिड मिस्टेक. Did he like started arguing with Allah? So you will talk about it. What did he do? He immediately sought repentance. अब उन्होंने ये रीजन नहीं पूछा जैसे हम पूछ रहे थे कि क्यों नहीं खा सकता. What did Hazrat Adam alayhi salam did? Allah said, why, like you ate it, you violated the instruction. Hazrat Adam alayhi salam, instead of arguing, he said that Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. That's the dua which we have to make it. We, oh God, we have done mistake, and we, if you will not forgive us, we will be in difficulty. तो ये हमें लेसन भी आगे नीचे पार्ट भी में आता है. yes. तो ये दोनों को, क्योंकि एक्चुअली दोनों को कहा था. कुरान की जो वर्ड्स है ना, वला तक़रबा हाज़िही शजर, तक़रबा जो अलिफ है ग्रामर के लिए, दोनों को इंस्ट्रक्शंस थी. और फिर इसीलिए हजरत आदम की दुआ भी देखें, रब्बना ज़लमना, ओ अल्लाह, वी डिड जुल्म ऑन आवरसेल्व्स. So zulm is actually गुनाह. हम नॉर्मली जुल्म समझते हैं किसी को हार्म करना. गुनाह itself is a जुल्म. ठीक है, इट्स वायलेशन एक्चुअली. तो दैट इज इट. अब ये आपने 4 मार्क आपके नीचे 4 मार्क्स में भी हेल्प करेगी चीज अंडरस्टैंडिंग, बट मेक श्योर you use these sentences which I have used there, but it could be different than that. आपका फोकस होगा how Allah, what Allah did for the prophet and what was expected and what did he do. ये नहीं लिखना what should we do. It's because it's the requirement of the part B of the question. आप अगर यहाँ पे लिखना शुरू कर दें कि हज़रत आदम के इवेंट्स हमें ये लेसन्स मिलता है, टीचिंग्स मिलती है, you won't be credited for that because we are not talking about your understanding here. We're talking about your knowledge, what you get from the story of Hazrat Adam alayhi salam. Some students talk about Hazrat Adam as a prophet of Allah, थोड़ा सा titles और दूसरी चीजों को भी mention करते हैं, but your main expectation from the examiner is here. ये कौन है? हज़रत आदम. हज़रत आदम की discussion क्या है वहाँ पे? इनकी creation है. Allah gave him knowledge. Allah gave him higher status than the other creations. So farishton ko instructions mili to make sajda to Hazrat Adam. What was the action of shaitan at that time? Did he listen to the order of making sajda or not? So this is what is discussed here. Farishton ka ek concern wahan pe tha. What was the concern of the angels? Actually, they made one concern, and Allah said that I'm going to create a creation. So angels said one thing only. What did they say? They said they will create disturbance, they will do murders or like killings and all of these things. Allah said, I know what you do not. Like I know more than what you like, the knowledge. Allah Ta'ala ka zyada hai human se. So that is the point which you can add there. Second prophet हमारे syllabus में, that is Hazrat Ibrahim alayhi salam. इसलिए sequence में अगर हम जाते हैं, ठीक है? तो Hazrat Ibrahim alayhi salam is discussed in Surah Al-An'am. You need to know the verse numbers also, ताकि आपको पता चले, आप डिटेक्ट कर ले उसको इजीली. एंड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी डिस्कस, हजरत इब्राहिम के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं कुरान के अंदर. About his son, about his wives, different stories are there in Quran. Like when we go with angels topic, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, तो हजरत इब्राहिम एक दफा अपने घर में थे और हजरत इब्राहिम की वाइफ सारा उनके साथ थी जब 2 angels ह्यूमन फॉर्म में. वो वाकया भी हम पढ़ेंगे, but we don't need that story. We are looking for the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Yeah, what are the teaching we are getting from there? That is the story of Hazrat Ibrahim's search for the true God. What methods he adopted? You will talk about it. वो पहले उन्होंने स्टार्स को अपना गॉड समझा, फिर मून को, फिर सन को. जब उनको पता चला कि ये दोनों मतलब बाउंड्री सेट है, तो उन्होंने उनको लगा कि अल्लाह कोई मतलब Allah is my Lord. Great, very good. Let me just again, sorry, your point. Yes.
Great, that's going to be in part B. Very good. अगर हम लिख सकते हैं कि what's the significance of having like how the God should not be like the sun or the moon, because the change of the day जब आएगा, alteration of the day, people might be able to do mistakes. ये 4 marks में जाएगा. वहां से मूसा ने भी कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा सा बिगिन करूं तो आपने ये तो स्टोरी है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से ट्रू गॉड को सर्च किया. यू विल बिगिन विद why Hazrat Ibrahim chose that method. Actually the people at that time, they were expert in the knowledge of the sun, moon, heavenly जो bodies होती थी creatures. So Hazrat Ibrahim used the logic. Even logic की significance आती है यहाँ पे कि आप ट्रू गॉड की सर्च में, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि आप सर्च कर सकते हैं, अल्लाह ताला की साइंस और पावर्स को देख के आप ट्रू गॉड की सर्च वहां पे कर सकते हैं. गिव यू अ साइन दैट द गॉड इज देयर. यहाँ पे साथ एक टीचिंग भी आती है, द क्रिएटर शुड बी वर्शिप नॉट द क्रिएशंस. तो ये भी पॉइंट वहां पे आपका आ जाएगा. ठीक है. और व्हाट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है? हु क्रिएटेड दीस सन्स, मून्स एंड ऑल ऑफ दीस क्रिएशंस? अल्लाह. हु कंसिस्टेंटली हेल्प्ड एंड गाइडेड हजरत इब्राहिम के वो डेविएट ना हो जाए, क्योंकि ह्यूमन है ना. बाज़ औक़ात साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करके इस्लाम कबूल करते हैं, बाज़ को साइंटिस्ट जो बिलीवर होता है वो एथियस्ट बन जाता है या इस्लाम छोड़ भी देता है कभी, क्योंकि वो अपनी लॉजिक और हर जगह अपने रीजंस को ऐड करना शुरू कर देता है. नहीं होता है वैसे, लेकिन जनरली ऐसा फिजिबिलिटी है, क्योंकि जब हम चीजों को ना लॉजिक पे लेके जाते हैं तो कई दफा हम इस्लाम, हर चीज इस्लाम की आपको ना अंडरस्टैंडिंग अकल से हो सकती है, लेकिन हमारा नॉलेज, रीजनिंग उस वक्त जगह तक पहुंचता नहीं है. जब वहां रिसर्च पहुंचती है तो फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है. बिग बैंग है. और अगर बताऊं, साइंटिस्ट इसके ऊपर जब रिसर्च करते हैं ना, कई साइंटिस्ट खुद इस चीज को रियलाइज करते हैं. और वो अब डिपेंड करता है, आप एक साइडेड होके अगर सोचते हैं तो आपका वो अंडरस्टैंडिंग उसी डायमेंशन में जाएगा. अगर कोई इस्लाम को स्टडी करता है या उसकी रिसर्च करता है कि मैं नेगेटिविटीज निकालूं, तो नेगेटिविटी निकालेगा. अगर आप न्यूट्रल होकर स्टडी करते हैं तो ये जो हेवनली क्रिएशंस है, हजरत इब्राहिम ने इसलिए उसके ऊपर सर्च किया क्योंकि उसको हजरत इब्राहिम ने, आप देखें यहाँ नहीं, एक और भी इवेंट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. उन्होंने फिरौन के साथ जब आर्ग्यू किया, डायलॉग किया, उस वक्त का जो वो था किंग था, और हजरत इब्राहिम ने उसको क्या कहा. वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो चले गए सारे लोग, हजरत इब्राहिम स्मैश ऑल द आइडल्स. व्हाट डिड ही डू? ही केप्ट द एक्स ऑन द शोल्डर ऑफ द बिगेस्ट आइडल. जब सर तो उन्होंने कहा था कि आइडल नहीं, सारों बुतों को तोड़े, तो वो हजरत इब्राहिम ने, एक्चुअली लोगों ने उनसे पूछा क्योंकि उनको शक था हजरत इब्राहिम नहीं तोड़ा होगा. व्हाट डिड दे से? दे आस्क्ड, दे कॉल्ड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. दे सेड हु डिड इट? हजरत इब्राहिम कैन से आई डिड इट और आई डिड नॉट डू दैट. हजरत इब्राहिम ने बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट लिया. हजरत इब्राहिम सेड आस्क द वन हु वाज स्टैंडिंग देयर. एक जो बड़ा आइडल आपका है उससे पूछें. तो हजरत इब्राहिम यूज लॉजिक्स हियर, रीजनिंग. अब वो बिल्कुल खामोश. दे सेड हाउ कैन तो कहने लगा यस, वो बोल ही नहीं सकते. हजरत इब्राहिम सेड व्हाई यू आर वर्शिपिंग देम, जब वो अपना डिफेंस ही नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते. अब जो किंग था वो शॉक हो गया, कुरान की वजह से उसका बिल्कुल मुंह बंद हो गया उसका. अब उसे गुस्सा आ गया. उसने क्या किया, इनको आग में डाल उठा के, क्योंकि जाहिर अब डिबेट नहीं कर सकते आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिधर भी कोई इस तरह का क्वेश्चन रेज होता है, ही यूज्ड टू गिव रीजंस. जैसे होता है ना कि टू लाइक उस वक्त की जो फील्ड थी, रिसर्च था, वो यही था. अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगा. प्रॉफिट्स को जितने भी मिरेकल्स मिले, जितना भी नॉलेज मिला है, उस वक्त का एक्सट्रीम लेवल पे जो नॉलेज रिसर्च चल रहा था उसको तोड़ता था. एग्जाम्पल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मेडिकल रिसर्चेस बहुत होती थी. लोग केमिकल्स बनाते थे, मेडिसिन बनाते थे तरह तरह के. अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को क्या ब्लेसिंग दी, मिरेकल, कि वो हील कर देते थे ब्लाइंड बाय बर्थ को. और जो डेड पर्सन है उसको, इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि मरा हुआ आदमी उठ के बात करना शुरू हो जाए थोड़ी देर के लिए. तो यस, बाय द विल ऑफ अल्लाह. आगे आएगा अभी हमारा. हाँ, अभी मैं उस तरफ आ भी रहा हूँ. तो हजरत ईसा के टाइम पे मिरेकल ये थे. होली प्रॉफिट के टाइम पे लोग, पीपल वर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज स्किल्स. अब एक पर्सन हु डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट और वो कुरान पढ़ रहा है और वो कुरान की वर्सेस पढ़ा, पीपल वर शॉक्ड कि हाउ इज इट. तो अल्लाह gave the miracles to the prophet which counter like challenge the expertise of that time. ये prophets का जो आर्टिकल है वहां पे हम इसको डिस्कस भी करते हैं. एनीवे, हजरत इब्राहिम के ऊपर जब आपने डिस्कशन करनी है, आई जस्ट बिगेन द स्टेटमेंट बाय सेइंग ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह. खलीलुल्लाह मींस फ्रेंड ऑफ अल्लाह, and Allah declared him खलीलुल्लाह. And Hazrat Ibrahim has a great status. He is counted as the great grandfather of all the prophets. You can talk about it or his significance over other prophets. He is the founder of all the religions which came after him, which is known as Abrahamic religions also. तो ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है. Then Hazrat Ibrahim की family जो थी, actually his father was in charge of the idol making. What was the name of Hazrat Ibrahim's father, by the way?
Allah says in Quran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. Azar was the name of his father actually. Quran में इसका mention हुआ है, नाम इब्राहिम के father का, he was in charge for that one. और फिर वो idol worshipping आ गई. Hazrat Ibrahim was not satisfied with it. He kept searching for the true God. और उस वक्त की जो expertise थी, हमारे लिए 4 marks में नीचे lesson क्या है? रिसर्च कर सकते हैं, think about the true God by using the scientific जो proofs हैं. वैसे कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप अगर एक एग से ही चिकन जो हैच होता है, जो चिक है, चूजा जो है, अगर इंसान उस पर गौर करे, सो पर्सन कैन नॉट इमेजिन कि एक डेड एनिमल से एक लिविंग डेड चीज से लिविंग चीज की बर्थ हो रही है, वो अल्लाह ताला कर रहे हैं, और अंदर अंदर पूरा का पूरा जो चिकन है आपका वो रेडी हो रहा है, और आम इंसान बिलीव भी नहीं कर सकता आपकी. अच्छा, बाहर आके वो बीमार हो जाता है अक्सर, जब हमारी एटमोसफेयर में आता है मोस्टली जो चिकन होता है वो आजकल डिजीज हो गई, ये हो गया, एग के अंदर उसको कोई हु इज टेकिंग केयर ऑफ हिम देयर, अल्लाह. और उसके ऊपर भी अगर खराब इम्पैक्ट है तो हमारा हु इज कंट्रोलिंग दैट, दैट्स अ गुड पॉइंट. जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एनर्जी चाहिए ना, लोग साइंस तो अब जाके एक्सेप्ट कर रही है ना, अंडरस्टैंड कर रही है. तो ये रिसर्च पहले तो नहीं थी जब कुरान लिखा गया 1400. दिस इज व्हाट यू गॉट इट. साइंस इसको अब रिसर्च करके प्रूव कर रही है. अल्लाह, नाउ वी कैन गेट मेनी थिंग्स देयर, बट अगेन व्हाई वी आर सेइंग दैट एंड हु डिड इट बिफोर और हु टॉक्ड अबाउट इट 1400 इयर्स अगो. कुरानिक टीचिंग, इसको कुरान और होली प्रॉफिट भी एग्जैक्टली, इसको मिरेकल्स ऑफ कुरान भी कहते हैं. और कुरान की कई टीचिंग्स ऐसी हैं, इफ यू स्टडी इट, बिकॉज़ दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, हम नॉर्मली हायर लेवल में पढ़ाते हैं कि मिरेकल्स ऑफ कुरान में ये है कि कुरान कई ऐसी चीजें आज से 1400 इयर्स अगो कह चुका है जो अब कुछ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेजुअली दे हैव टू एक्सेप्ट इट. तो मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड इन कुरान, इनमें से एक ये भी आ गया कि जी यस सर, जो होली कुरान में इस तरह की वर्सेस हैं जिनमें शुरू में लिखा जाता है ए ईमान वालों, सर, तो वो जो आयत होती थी वो मुस्लिम्स के लिए आती थी ना, जो वो मदनी, यस एग्जैक्टली, वो लाइफ इन मदनी. एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स के लिए हो. लाइफ इन मदीना में जो है ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिलीवर्स बढ़ गए, तो फिर ये आपकी ना मक्की और मदनी वर्सेस के बीच में डिफरेंस भी है कि इन मक्की वर्सेस अल्लाह हैज यूज्ड अ वर्ड ओ पीपल एंड मदनी में ओ बिलीवर्स, ए ईमान वाले. तो ये डिफरेंस सर, तो वाली जो वर्स होती थी वो होली प्रॉफिट नॉन बिलीवर्स के सामने लाते थे, ला सकते थे, बिल्कुल ला सकती है, ठीक है वो. लेकिन ये इसमें बिलीवर्स, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है ना, जब आप इसको सर्च करेंगे मक्की और मदनी वर्सेस के डिफरेंस में चला जाता है. अच्छा, 2 हमने प्रॉफिट्स डिस्कस किए. हजरत इब्राहिम का मैंने आपको बताया, सर्च और क्वेस्ट फॉर द ट्रू गॉड बाय पॉन्डरिंग इनटू हेवनली वर्ल्ड, क्रिएशंस ऑफ अल्लाह. और उससे कई और टीचिंग्स मिलती हैं. अल्लाह ऑलवेज गाइड्स द पीपल हु आर इन सर्च ऑफ ट्रू पाथ, and Allah has created his signs, and like there are signs, if we search about them, and the creator has to be worshipped, not the क्रिएशन. तो आपको यहाँ से मल्टीपल और पॉइंट्स भी वहां पे मिल रहे हैं. अब आ जाते हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम. बच्चे यहाँ पे हजरत ईसा के मिरेकल्स खाली लिस्ट डाउन कर देते हैं, दैट इज नॉट एनफ. अगेन हजरत ईसा अलैहि सलाम सिग्निफिकेंस क्या है, अल्लाह मैसेंजर, ठीक है, और इसके साथ साथ मदर बॉर्न विदाउट फादर एज अ मिरेकल. फिर अब अल्लाह हैज ब्लेस्ड हजरत ईसा अलैहि सलाम विद मिरेकल्स टू काउंटर द पीपल हु वर मेकिंग fun of Hazrat Isa alayhi salam or who was not accepting Hazrat Isa as the prophet. So Allah helped him, assisted him by giving him miracles. अब miracles आपको बताने चाहिए. 6 miracles हैं हजरत ईसा के. I don't know यहाँ पे सारे के सारे अगर हैं या नहीं है. एक miracle यहाँ पे हमारे सिलेबस वाला जो पैसेज उसमें नहीं है. पहले मैं आपको miracles बताता हूँ जो सिलेबस वाले पैसेज में है. हमने 2 अभी डिस्कस भी किए. पहली बात तो ये है कि सिंपल सी चीज है, कैन स्पीक टू द पीपल इन हिज मदर्स लैब. So when he was in his mother's lap, he was able to speak to the people at that time. दूसरी चीज ये है कि हजरत ईसा was able to cure the blind by birth, जो by birth blind होता था, या हजरत ईसा was able to cure the lepers as well. एक डिजीज है जिसमें व्हाइट स्पॉट्स बॉडी में पड़ जाते हैं, तो लेप्रेसी. तो हजरत इब्राहिम was इस कंडीशन. और अगेन वो डिजीज नॉर्मली उसकी कोई, उसको आप कह सकते हैं कि लाइलाज बीमारी, और उस वक्त लोग उसकी कोई क्योर ही नहीं थी. तो हजरत ईसा अलैहि सलाम, अल्लाह has blessed him with that miracle. हजरत ईसा was able to go to a dead person and he asked him to wake up, और वो उठ के लोगों से बात करता था. तो ये भी मिरेकल हजरत ईसा का वहां पे आप ऐड कर सकते हैं. हजरत ईसा के मिरेकल्स के अंदर और भी है. He used to make birds with clay, blow in them, and they used to fly like a normal deer by the will of Allah. और एक जो मेरे ख्याल में इस वाले पैसेज में हमारे में नहीं है, लेकिन हजरत ईसा के मिरेकल है, कुरान की एक और वर्स के अंदर है, और वो है हजरत ईसा कैन टेल द पीपल व्हाट दे हैव ईटन एट होम. जैसे कोई खाना खा के आया है, हजरत ईसा कैन टेल के वो कितना क्या खा के आया है, कितना उसने खाया, और कितना घर में स्टोर किया हुआ भी बचा हुआ है. तो दैट्स अनदर मिरेकल.
फायदा ये कि हो सकता है लोगों को इससे प्रॉफिट जो है ना, जैसे आजकल के लोग अपने नॉलेज का थोड़ा सा इंप्रेशन डालते हैं, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम लोग फिर इंस्पायर होंगे ना कि अच्छा ये बात हजरत ईसा अलैहि सलाम हो गए, तो मींस के दे विल अंडरस्टैंड ही इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, ही हैज नॉलेज, समवन इज देयर हु इज गाइडिंग हिम। आजकल के दौर में बच्चों को बोलो सर कौन सा मसला भी टेक्स्ट करके पूछवा सकते हैं सेकंड, तो अब थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन, उस वक्त के लोगों के लिए ये बिलीव करना पॉसिबल ही नहीं था, एंड दे नो। तो अब आजकल का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, तो आपको जो अब आजकल जो प्रूफ्स हैं जो वो डिफरेंट तरह के मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम अभी डिस्कशन पे नहीं जा रहे, लेकिन हजरत ईसा अलैहि सलाम, क्योंकि आजकल का बच्चा का तो ये कौन सी बड़ी चीज है, तो इस यस आप नहीं पढ़ सकते ओवरऑल दुनिया में इलीगल, और वो ना कहते हैं कि जिंदगी होते हैं उनको ना अल्लाह की वो क्रिएशंस हैं जिन एक्चुअली, ये बंदा था ना, उसको ऑनलाइन टेक्स्ट मिल गया था, उसने जब इंग्लिश पढ़ा ना, तो ना मैं तो बंदा सऊदी अरब का ना, उसने पढ़ा ना, अरबी में लिखा हुआ था, तो ना दे ही वाज वेरी फुल रात में भी मेडिटेशंस कर, उसमें मैं साथ लग गई, तो चलो उसकी तरफ बाद में आते हैं, बड़ी लंबी डिस्कशन है ये, यस हाँ। जीसस सबसे ज्यादा नहीं, अब जरूरी नहीं सबसे ज्यादा, अब हो सकता है एक ही पावर हो, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेवंस पे गए, आसमान के ऊपर, ये हमें इसलिए नहीं उठा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, ये आपने लाजमी लिखना है, हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला, देखिए हजरत ईसा अलैहि सलाम वाज सेंट टू द पीपल। अब पहली चीज ये कि born without a father, people were accusing him number of like blames and all of these things, तो अल्लाह blessed him with those miracles ताकि वो लोग बिल्कुल उनके ऊपर बिलीव कर सकें, और उस वक्त की जो चीजें स्प्रेड आउट थी उनको काउंटर करने के लिए हजरत ईसा अलैहि सलाम किसी को उठाते तो हमेशा नहीं रहता था, he was there for a time, he used to speak to the people, और ये काम हजरत मूसा अलैहि सलाम के भी टाइम पे हो चुका है। अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, हमारे सिलेबस में यहाँ नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे एक मर्डर हुआ था, ये जो काओ की स्लॉटरिंग वाला पूरा वाकया है उससे रिलेट कर रहा है। सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहते हैं? बकरा इज काओ एंड देयर इज अ स्टोरी अबाउट काओ। बनी इस्राइल में एक मर्डर हुआ था, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने लोगों से कहा आप कोई भी काओ स्लॉटर करो और उसका गोश्त लगाओ डेड बॉडी से, वो जिंदा हो जाएगा। लोगों ने इतनी कहानियां की, क्वेश्चन किए कि बात बढ़ती गई, इतनी मुश्किल से एक काओ फिर चूज हुई एंड पे जाके, बट उस टाइम पे भी वो बंदा उठा, उसने बताया मेरा मर्डर ये एंड राइट, ये कुरान में है, ठीक है पूरा वाकया। उसके तकरीबन लोगों को देखते हुए कि वो बड़े नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, जब मेरे प्रॉफेसर ने कह रहे कि उनको आसमान में भेजा, तब उन लोगों के सामने तो नहीं होता, वो तो लोगों के सामने नहीं हुआ। गुड पॉइंट, एक्चुअली उसमें कुरान एक सबसे बड़ा मिरेकल है। फिर दूसरी जो चीज है ना, जो आप कहते हैं कि मेराज का जो इवेंट है, मेराज का इवेंट प्रॉफिट ने उनको प्रूफ दिया था एंड दे वर शॉक्ड बाय द वे, बट दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट बिकॉज़ दे वर स्टबर्न, कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave them two proof. Prophet told them about Masjid al-Aqsa and the caravan as well. So they were shocked कि how someone knew about our location at that time. आपका जीपीएस वगैरह तो सारा एक तरह है उस टाइम पे, कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told them कि उस टाइम पे वहां पे थे। तो that's there. Even Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got other miracles as well, जो इवेंट्स के लिहाज से डिफरेंट ओकेजन्स पे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली जो बिलीव करेगा प्रॉफिट पे तो उसके लिए एक्सेप्ट करना। हजरत ईसा के इतने मिरेकल्स होने के बावजूद वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड हिम, हालांकि उससे पिछली भी जो पीपल थे दे वर आल्सो फॉलोवर्स ऑफ द बुक। हाँ, they were saying because they were saying it's आजकल भी जैसे अगर कोई, अब तो खैर प्रॉफिट खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई किसी को कन्विंस करना चाहे तो पीपल माइट बी सेइंग ये तो एक अलग कोई चीज हो रही है। एनीवे वी लाइक आर मूविंग टू द टॉपिक जो भी हमारे डिस्कशन में रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है हमने कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास ये तीनों प्रॉफिट्स की डिस्कशन है, ये पूरा पॉइंट, कैम्ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन है, आई कैन से आप लेवल 3 का हाईएस्ट आराम से इसके साथ ले सकते हैं। यू मे नीड टू ऐड डिटेल्स डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एंड व्हाट इज द वे टू आंसर इट? बिफोर आई मूव टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's रिमेनिंग 2 passages, आई विल शो यू वन लेटेस्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल सजेस्ट यू कि आप एक दफा इसको देखें। इट विल गिव यू एन आइडिया। दिस इज मई जून 2025 पाकिस्तानी वेरिएंट क्वेश्चन है, और यहाँ इसने आपको ना सजेशन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, और आई थिंक कुछ स्कूल्स में टेस्ट में भी शायद टीचर्स दें, अगर 3 बेस्ट क्वेश्चन वो देते हैं। हजरत ईसा एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत ईसा से आपने कैसे लिखना है, यू कैन सी, एक तो आपने रेफर करना है कि विद पैसेज इन योर सिलेबस टॉक्स अबाउट हजरत ईसा अलैहि सलाम, सूरह माइदा का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। और व्हाट डिड अल्लाह डू देयर, अल्लाह टॉक्ड अबाउट हिज ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग्स को आप थोड़ा सा डेवलप करते हैं, ठीक है। देन वन ऑफ द फेवर वाज प्रोवाइडिंग, ये अभी एक एक करके आ रहा है। हजरत ईसा की डिस्कशन में एक वर्ड यूज हुआ है, हर जगह अल्लाह ताला ने एक वर्ड वहां पे लिखा है बिइज़्निल्लाह, बाय द विल ऑफ अल्लाह।
बाय माय विल, वहां पे ट्रांसलेशन है, जब आप ट्रांसलेशन देखते हैं ना उस पैसेज की, तो इट हाईलाइट्स व्हाट, डू यू थिंक द प्रॉफिट्स आर स्ट्रांग, दे विल बी वर्शिप्ड, और समवन एल्स इज स्ट्रांग हु इज गोइंग टू बी वर्शिप्ड, दैट्स अल्लाह. Why Hazrat Isa is able to do all of these miracles? Are these miracles in his hand? Are they in the hands of the Prophet? No. This is what you need to highlight it, कि they were happening by the will of Allah. Okay? तो Prophet अपनी मर्जी से ये नहीं कि जब किसी पे गुस्सा आएगा मैं भी उसका कुछ करता हूँ, अपना पावर यूज कर दे. No, he cannot use it until Allah wills. तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट में आएगा. Allah granted the miracles to realize God's status, creator, and his status as a prophet. We were talking about why the miracles were given. इसी का जवाब है, ठीक है? God gave Isa miracles. What I was talking about, relevant to his time. Can you see this? Cambridge ये चीजें आपके आंसर में ढूंढता है. जो मैं आपको पॉइंट शुरू में बता रहा था, you might be thinking कि मैं कुछ स्टोरीज आपको बता रहा हूँ, but when you will see the marking scheme, you will realize कि एग्जामिनर आपसे ना उस टॉपिक की डेप्थ में एक्सपेक्ट करता है जाना. तो you can see they are expecting the same thing. And then he was also given the law of the gospel. ये सारा आ जाएगा. और God saved Isa from execution. ये भी एक मिरेकल है कि Allah took him up to the heavens, and students may talk about Hazrat Isa will descend before the end of the world and he will come back. As per Muslim belief, he is alive and he is there. How exactly? Allah knows better. ठीक हो गया. Similar to the Shaheed, Allah, like Allah has mentioned, they are not dead, they are alive. How exactly? Allah knows better. We cannot understand number of things because हमारी जो vision है, हमारी जो understanding है वो limited है. छोटे बच्चे को अगर आप समझाने लगे, आजकल तो उसका कोई बड़ा विजन बढ़ चुका है, उसकी भी रिसर्च हमसे ज्यादा है, लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप बताने लगे हर चीज के बारे में, कई जगहों पे आप कहते हैं when you will grow up you will understand it. Similarly, number of things, when the person dies, आंख बंद होती है, दूसरी आंख खुलती है उधर, तो सारा रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर आपको पता लगता है अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था. तो बिकॉज अवर विजन इज लिमिटेड, अवर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, तो वो एक अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन को एक्वायर हम नहीं कर सकते. यस, ठीक है. यस, हज़रत ईसा को क्रूसिफाई नहीं किया गया था. क्रूसिफाई नहीं किया गया था. अब उसकी डिटेल हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन उस पे स्कॉलर क्योंकि कुरान में उसके बारे में लिखा हुआ है. अल्लाह से कुरान वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कुरान की एक वर्ड है. अगर आप उसको सर्च करते हैं, अल्लाह से कुरान वमा क़तलूहु, दे डिड नॉट किल हिम, वमा सलबूहु, दे डिड नॉट एग्जीक्यूट हिम, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये कुरान की वर्ड्स है. बट दे वर कंफ्यूज्ड. शुबा मींस कि आप कंफ्यूज हो जाना. अब उसके ऊपर डिटेल है, तफसीर के टॉपिक में हम जब जाते हैं तो उसके ऊपर कि देयर वाज अ पर्सन हु लुक्ड लाइक हज़रत ईसा अलैहि सलाम, ही वाज दे एग्जीक्यूशन ऑफ टू दैट पर्सन हु वाज नॉट एक्चुअली हज़रत ईसा अलैहि सलाम. हज़रत ईसा अलैहि सलाम वाज टेकन अप टू द हेवंस. और जो हम डे ऑफ, yes, he was not the one who was, as per their belief, the person who was executed was not. Even जो Christians उनका भी belief थोड़ा सा आप इस पे सर्च करेंगे, उनके हिसाब से वो वापस आ गए थे and all of these things. वो एक अलग डिस्कशन है. वो बोल रहा था, it is mentioned that he was shouting, they said you are trying to get rid of the punishment and all of these things. तो ये एक पूरा वाकया है, हमारी डिस्कशन में नहीं, I'm not going. कुरान की मैंने आपको वर्ड्स बताई, मुझे एग्जैक्ट सूरत में I'm not that हाफिज के मैं, लेकिन मुझे वर्ड्स याद है. और आप जब सर्च करते हैं गूगल पे, आप इतना भी लिखे ना वमा क़तलू वमा सलबू, ये कुरानिक वर्ड्स भी ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स निकाल के दे देता है. तो बस दैट्स देयर इन कुरान. ओके, कुरान की वर्ड्स है. ऑलराइट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे पास दो पैसेजेस हैं. मेरे हैंडआउट में वहां पे आपको सूरह दोहा और सूरह कौसर नहीं मिलेगा. उसका रीजन ये है, सूरह दोहा और कौसर मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ बैकग्राउंड ऑफ द सूरास के अंदर. तो वो बैकग्राउंड की जब आप डिस्कशन में जाते हैं, वहां पे थीम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है. ठीक है. अब सूरह कौसर का बैकग्राउंड भी आपको पता है. That's the death of Holy Prophet's second son. What was his name? Hazrat Abdullah. और फिर Quraysh of Makkah made fun of Holy Prophet. They called him Abtar. Abtar word explain करें. फिर उसके बाद अल्लाह, अब फिर theme of the passage भी लिखेंगे. ठीक हो गया. फिर इसी तरह से दूसरा है सूरह दुहा. सूरह दुहा का बैकग्राउंड क्या है? गैप इन द रिवेलेशन, जो persecution opposition से आपने लिंक करना है. और हाँ, और अबू जहल, अबू लहब की वाइफ, व्हाट इज हिज नेम? हर नेम उम्मे जमील. उम्मे जमील यूज्ड टू से कि योर सैटन इवन लेफ्ट यू. वो रेफरेंस आप देंगे. एंड अल्लाह रिवील, सैटन वो अल्लाह ताला को बोलते थे. उम्मे जमील जो है वो होली प्रॉफिट को कहती थी आपका जो गॉड है, मतलब वो अपने फन, क्योंकि दे वर नॉट बिलीवर्स, सो दे यूज्ड टू से दैट रिमार्क देयर. अल्लाह रिवील्ड सूरह दुहा. फिर सूरह दुहा की टीचिंग भी आपके पास आ जाएगी. अब ये तो आपके पास 5 पैसेजेस का एक जनरल आउटलाइन है. क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आए, मैंने आपको एक क्वेश्चन लेटेस्ट दिखा दिया. दिस इज वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, मई जून 2025 के अंदर आया हुआ है. कैम्ब्रिज प्रीवियसली बड़ा आसान क्वेश्चन देता था, राइट यूजिंग द पैसेज इन योर सिलेबस, राइट एन अकाउंट ऑफ अल्लाह's रिलेशन विद मैसेंजर्स. ओपन क्वेश्चन है, आपको चारों मैसेंजर्स पे लिखना है. फिर कैम्ब्रिज ने कहा एनी 3, तो जाहिर है 4 में से 3 आ गए.
फिर कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन बनाया, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट्स एनी 2 प्रॉफिट्स सेंट बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब कौन से रह गए? हजरत आदम, हजरत ईसा और हजरत इब्राहिम। बस अब पहले शुरू में जब ये क्वेश्चन आया ना, फर्स्ट टाइम बच्चों ने हजरत सुलेमान पे लिख दिया, किसी ने हजरत दाऊद पे लिख दिया, जो जहन में प्रॉफिट आया लिख दिया। कैम्ब्रिज का क्वेश्चन उनको समझ नहीं आया। क्वेश्चन की वर्डिंग वहां पे क्या लिखी हुई है? यूजिंग द पैसेजेस सेट फॉर स्पेशल स्टडी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने उस चीज को वहां पे ख्याल रखना है, एंड योर कंसंट्रेशन विल बी ऑन द स्पेसिफिक सिलेबस के जो पैसेजेस हैं वो आपके वहां पे होने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लुक एट दिस वन, ये वाला देखें। Using the passage you have studied out that Allah has, of course, examiner has specified हजरत आदम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये आया हुआ है 2023 पाकिस्तानी वेरिएंट, मई जून का पेपर है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आज बच्चे हजरत इब्राहिम को छोड़, अच्छा अब्राहम क्यों से लिखा हुआ है? क्योंकि अब्राहम लिखा हो, जीसस लिखा हो, आपने हजरत ईसा, आप जीसस भी लिख सकते हैं, ईसा भी लिख सकते हैं, इब्राहिम, अब्राहम, बोथ आर फाइन, ओके। सेम गोज फॉर व्हाट एल्स इज देयर? वो प्रॉफिट इब्राहिम, सॉरी हजरत आदम तो सेम ही है, स्पेलिंग उसमें डिफरेंस नहीं आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एक और आपको मैं दिखा दूं। वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, आई थिंक ये वाला है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने कौन सा पूछा हुआ है? राइट अबाउट गॉड सेज अबाउट हिज रिलेशन एनी टू, ये तो आसान है। और उससे पहले था बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। When you will go to the document, they are the model questions which are asked over a period. ये तो 2 क्वेश्चन किए, ये भी आपने देख लिए, ठीक है। ये मॉडल आंसर है, but that is just suggested answer. It is almost same as above, okay. इसमें हमने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन बैंक है which was asked over a period of time। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, ज्यादा पुराने नहीं है, they are all after 2013 papers। पहला देखें, पैसेजेस सेट फॉर स्पेशल स्टडी। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोशिश करें चारों पे लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 of his messengers sent before prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। 4 में होली प्रॉफिट भी इंक्लूड हो जाएंगे, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा और होली प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, प्रॉफिट को एग्जाम कर दिया क्योंकि यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उनका बिफोर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब आपके पास 3 में से कोई से 2 रह गए, ठीक है। हजरत आदम और हजरत ईसा पे लिखना आसान है, ऑनेस्टली उसकी डिटेल्स अच्छी हैं, आप डेवलपमेंट अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट अबाउट द लेसन्स। अब ये स्पेसिफाई हो गया, आदम एंड जीसस, हजरत ईसा अलैहि सलाम आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखें, हाउ गॉड गाइडेड हिज मैसेंजर्स। अच्छा यहाँ एक चीज है, इस क्वेश्चन की आखिरी वर्डिंग पे आपने गौर करना है, रेफर टू एटलीस्ट 2 मैसेंजर्स। विल यू रेफर टू जस्ट 2 मैसेंजर्स? इट्स सेइंग एटलीस्ट 2, इट मींस व्हाट, यू नीड टू गो मोर देन 2। तो आप 3 पे लिखें, 4 पे लिखें, इट्स गुड टू गो विद ऑल 4। लेकिन आप 3 पे भी लिखते हैं तो आप लेवल 4 पे पहुंच जाएंगे। लेवल 4 का हाईएस्ट अगर आपको चाहिए तो इट्स गुड टू गो विद मोर देन दैट वन। अब जाहिर है कैम्ब्रिज को भी पता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे नोट आंसर्स रटे लगाए हुए हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन को ट्रिकी करेंगे। ये अगर देंगे तो बच्चे ने तो चारों ही चारों लिखे आएंगे, तो 2 तो शायद ही कोई लिखे है जिसको कुछ भी नहीं आता को वो लिखेगा, क्योंकि हमारा स्टूडेंट भी इस वक्त बहुत प्रिपेयर्ड होता है। मैं जब आंसर चेक कर रहा होता हूँ, स्पेशली बेस्ट आंसर्स के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, आई एम अनएबल टू डिसाइड कि मैं लेवल 4 से नीचे कैसे लेके जाऊंगा। The target is not to give you less marks, because we know there will be a tough competition in exams, और वहां पे आपको थोड़े मार्क्स की वजह से सफर करना पड़ता है। जो भी रिसेंटली आपने ग्रेड्स भी देखे, कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस फुल होते, क्योंकि इतने अच्छे आंसर्स हैं। उन आंसर्स में से थोड़ा सा ए स्टार से ए लेके जाना और ए से बी लेके जाना, जो ग्रेड बाउंड्रीज होती हैं, बड़ा ट्रिकी होता है। तो इस कोशिश करें कि आपका आंसर बेस्ट लेवल पे जाए। We have few 4-mark questions whose answers are here. Why do you think God sends revelations through messengers? Humans जो हैं God से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे उसके मल्टीपल रीजंस दिए हुए हैं, और इसमें दिया हुआ है mankind cannot directly communicate, एक रीजन ये आ जाता है। दूसरा इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है, Allah, it is against the honor of the God to communicate with the people directly. His status is much higher than mankind. So mankind could not understand the message of the God directly. So there should be someone who is trained for that. Like Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's heart was strengthened before first Wahi revelation and made it stronger, or even washing of his heart was Sara. So that's the reason. Then why the messenger was sent among the communities? Allah Ta'ala angels को भी तो भेज सकते थे as a prophet or messengers, लेकिन Allah did not send them
तो उसका भी पॉइंट आपने यहाँ पे क्या करना है, डेवलप करना है। देन व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस एज द डिप्टी, अशरफुल मखलूकात हैं या असिस्टेंट है अल्लाह ताला के दुनिया के अंदर, तो व्हाट इज आवर ड्यूटी, थोड़ा बड़ा आंसर है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने स्टूडेंट्स को होम टास्क के लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि 2 और क्वेश्चंस हैं कैम्ब्रिज के विच आर आस्क्ड, बल्कि 2 नहीं 3 है, लेकिन 2 के आंसर सेम है इसके अंदर। सो दे आर एडिशनल 4 मार्क क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आस्क्ड अबाउट अल्लाह's रिलेशन विद द मैसेंजर्स हियर एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज लास्ट बिफोर आई वाइंड अप टुडेस डिस्कशन, नॉर्मली when we talk about first Islamic community, ठीक है, उसमें जो 10 blessed companions हैं, कैम्ब्रिज ने थ्रू आउट फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 10 blessed companions में से फर्स्ट 4 पे ही क्वेश्चंस दिए, अकेले 10 मार्क्स के भी आए हुए और 2 पर्सनैलिटीज मिला के भी हैं, which I showed you already. What about the remaining 6 personalities? Did they came in exam or not? अगर मैं आपको remaining 6 personality पे बताऊं तो सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चंस कैम्ब्रिज में आए हुए हैं about remaining 6 personality. एक क्वेश्चन था ये वाला which is May June 2024, ये जिस साल आया तो स्टूडेंट्स ने चॉइस में ही छोड़ा है क्योंकि उनको हजरत उमर में तो आता था, लेकिन रिमेनिंग 2 और यहाँ से चूज नहीं कर सक रहे। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी ये हमेशा चॉइस क्वेश्चन होता है। कंपलसरी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती हैं पेपर 1 में, और हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस से रिलेटेड चीजें होती हैं पेपर 2 में। ये चीज आपको खुद भी थोड़ा सा क्लियर होगा ताकि आप प्रिपरेशन करते हुए ये रिस्क ले सकते हैं। तो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 10 प्लस कंपेनियंस में मैं भी इसलिए डिटेल में नहीं गया। व्हेन यू गो विद माय हैंड आउट यू विल फाइंड आउट ब्रीफ डिटेल्स अबाउट रिमेनिंग 6 आल्सो। और ये अगर आपके एग्जाम में आया तो ये मई जून 2024 है। और मैं आपको वैसे भी बताऊं, अब आप ये देखें कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम में भी ज्यादा डिटेल किस पे है, सबसे हजरत उमर के ऊपर है। डोंट थिंक हजरत उमर के बराबर ही बाकियों को भी लिखना है, अब बाकियों की डिटेल आपकी कम है। और आई विल से हजरत तलहा हजरत जुबैर की डिटेल इस मार्किंग स्कीम में शायद ज्यादा हो कंपेयर टू मेनी बुक्स। इवन माय हैंडआउट हैज लेस डिटेल्स अबाउट दीस 2 पर्सनालिटीज, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी पर्सनालिटीज में अब्दुर्रहमान बिन औफ है, अब्दुर्रहमान बिन औफ पे मेरे हैंडआउट में भी डिटेल है। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ चूंकि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो आई विल सजेस्ट कि ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए हुए हैं। बाकी 10 प्लस कंपेनियन 6 जो रिमेनिंग है ये इन 2 पेपर्स के अलावा नहीं है। एक ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2021 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट है जिसमें ये आया हुआ है विद अदर पर्सनालिटीज। मैं 10 प्लस कंपेनियंस की अभी खाली बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग 6 की। तो इसमें खाली कौन है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ पे डिटेल है। अगर एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट ही लिखना है। अगर वो ओपन क्वेश्चन देते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत उस्मान की इलेक्शन के अंदर भी डिटेल है। एग्जैक्टली पैनल बैठा था, फिर हजरत उस्मान ने हजरत अब्दुर्रहमान ने कैसे हजरत उस्मान को शॉर्टलिस्ट, तो डिटेल्स आर देयर। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स द क्वेश्चन वर्डिंग। हियर they did not restrict the question with that, तो ये आगे तक जाएगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की डिटेल में आप आगे के डिस्कशंस को भी कवर कर सकते हैं। कैन यू सी दिस लास्ट 2 लाइंस? अब here you have to write it, but if they have restricted it तो फिर आपने उसको उधर तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक हमारे पास हो गया। और 2 चीजें मैंने आपको अभी यहाँ पे ये एक आपको बताया, क्वेश्चन जो है कहाँ चला गया, ये वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपने मई जून 2024 का, अगर 10 प्लस कंपेनियंस है, यू कैन यूज द हैंडआउट फॉर दैट वन एज वेल। यू विल फाइंड डिटेल्स ऑफ तलहा जुबैर इन माय हैंडआउट, बट जुबैर इज डिस्कस्ड ब्रीफली एंड दैट्स व्हाई आई रोट हियर ऐड मोर डिटेल्स फ्रॉम द बुक। Don't blame the teachers सर आपके नोट्स में इतना से लिखा हुआ था, because the time I found the details about his personality, I found it less from there. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पे मेरे हैंडआउट में कई और डिटेल्स हैं। साद बिन अबी वकास डिटेल्स आर हियर। सईद बिन जैद is the brother-in-law of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु also, ठीक है, बनु अदी ट्राइब से थे एग्जैक्टली, ठीक है। हजरत अबू उबैदा पे डिटेल है, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन हजरत अबू उबैदा। बाकी क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत रेयर आया हुआ है, तो आई शोड यू द 2 पेपर्स इन व्हिच द रिमेनिंग 6 पर्सनालिटीज आर देयर। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप द डिस्कशन हियर